ادھر انہی کا بیٹا خواجہ محمد امین کا بیٹا خواجہ پیر محمد حسین ہے، وہ سامنے کتبے لگے ہوئے ہیں ان کے. اعلیٰ مقام پہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں. یہ خطیب الاسلام ہیں، ابو الکلام ہیں، لاکھوں کروڑوں مرتبہ ان کے مزار پہ درود و سلام ہے. یہ پیر فیضل اسنس کا نام. آج کی ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے ایک ایسا تاریخی گاؤں جو مذہبی اور سیاسی حوالے سے ملک گیر شہرت رکھتا ہے. ناظرین، آج میں آپ کو آلو مہار کی سیر کراؤں گا. جس روڈ پر ہم اس وقت گامزن ہیں، یہ چھوٹی سی سڑک اڈا موترا سے نکلتی ہے جو ہمیں آلو مہار تک لے جاتی ہے. اس گاؤں میں ایسی نابغہ روزگار ہستیاں گزری ہیں جن کے فیوز و برکات آج بھی جاری و ساری ہیں. بھیلو مہار اور آلو مہار آمنے سامنے موجود دو گاؤں ہیں جو ڈسکا سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، جن کے درمیان موجود حد فاصل یہ جی ٹی روڈ ہے. بھیلو مہار میں آج بھی مہار برادری کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، اس لیے اسے بھیلو مہار کہا جاتا ہے. جیسے ایک سڑک اڈا موترا سے آلو مہار کی طرف نکلتی ہے، ایسے ہی ایک راستہ بھیلو مہار سے بھی آلو مہار کی طرف جاتا ہے جو بھیلو مہار کو آلو مہار سے ملاتا ہے. یوں تو آلو مہار کو بزرگان دین کے حوالے سے ایک خاص مقام حاصل رہا ہے، لیکن ماضی قریب میں اس کی شہرت کا ایک سبب پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جناب سید افتخار الحسن المعروف زہر شاہ مرحوم کی سیاسی خدمات ہیں. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ سید افتخار الحسن شاہ المعروف زہر شاہ 1942 میں ڈسکا کے اس نواحی گاؤں آلو مہار میں پیدا ہوئے. آپ کے والد پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ معروف عالم دین اور ختم نبوت کے علم بردار تھے. سید افتخار الحسن شاہ نے 1965 میں پی ڈی ممبر کی حیثیت سے اپنی سیاست کا آغاز کیا. پھر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی. 1989 میں وہ چیئرمین یونین کونسل منتخب ہوئے. 1983 میں 4 یونین کونسلز کے حلقہ سے ممبر ضلع کونسل منتخب ہو گئے. 1985 میں غیر جماعتی الیکشن میں ممبر پنجاب اسمبلی بن گئے. وہ متواتر 3 بار 1993 تک ایم پی اے منتخب ہوتے رہے. 1997 میں ایم این اے منتخب ہوئے. 2008 میں بی اے کی شرط کی وجہ سے ان کے داماد سید مرتضیٰ امین صاحب ایم این اے بنے. 2013 اور 2018 میں بھاری اکثریت سے پھر ایم این اے منتخب ہوئے، جبکہ ان کے بھائی سید حسنات الحسن شاہ صاحب ضلع کونسل سیالکوٹ کے چیئرمین اور کئی بار یونین کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. زہر شاہ مرحوم کی ساری سیاسی زندگی مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی میں گزری. وہ میاں برادران کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور اپنے حلقہ کی ہر دل عزیز شخصیت اور ملن نثار طبیعت کے مالک تھے. زہر شاہ ایک پرجوش مقرر تھے. آپ زبان و بیان میں بڑی روانی رکھتے تھے. آپ اپنی تقریروں میں اپنے مخصوص چٹکلوں اور حصے ظرافت کے باعث مجمع کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتے تھے. زہر شاہ مرحوم اپنے حلقے میں سیاسی مخالف اور دوستوں کی غمی و خوشی میں برابر کے شریک رہتے. وہ اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں کی ضمانت سمجھے جاتے تھے. پر امن اور مثبت سیاست کی وجہ سے ان کو مدتوں یاد رکھا جائے گا. ڈسکا سے 4 بار ایم این اے اور 3 بار ممبر صوبائی اسمبلی رہنے والے سید افتخار الحسن شاہ المعروف زہر شاہ 2 اگست 2020 کو 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. لاہور کے ایک ہاسپٹل میں شاہ جی کے دل کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد ان پر فالج کا حملہ ہو گیا. چند روز موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. سید افتخار الحسن شاہ مرحوم کو ان کے بزرگوں کے پہلو میں دفن کیا گیا. اس مزار کی تزئین و آرائش کا صحرا بھی زہر شاہ کو جاتا ہے، چونکہ اس درگاہ میں
آپ کے آباء و اجداد مدفون تھے اور آپ اس کے سجادہ نشین بھی تھے، اس لیے عمر بھر درگاہ کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے رہے۔ بلا شبہ سید افتخار الحسن مرحوم اپنی 50 سالہ سیاسی زندگی میں ناقابل شکست رہے، نیب میں بھی زیر اعتاب رہے، مگر سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کی۔ اس وقت آپ کی صاحبزادی سیدہ نوشین افتخار صاحبہ آپ کی سیاسی جانشین ہیں۔ سیدہ نوشین افتخار قومی اسمبلی کی رکن ہونے کے ساتھ ساتھ پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کی قائمہ کمیٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جناب صاحبزادہ سید مرتضیٰ امین صاحب کی، جو اس درگاہ کے موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ آپ سید خالد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ ایک بلند پایہ خطیب اور ایک نہایت ہی قابل قدر معزز علمی شخصیت ہیں۔ دنیا بھر میں آپ کے مداح اور مریدین موجود ہیں، جو نہ صرف آپ سے بے پناہ عقیدت کا دم بھرتے ہیں، بلکہ آپ کے روحانی خطابات کو بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ آپ فن خطابت میں ممتاز ہیں۔ فصیح و بلیغ اور شستہ لہجہ آپ کی خاص پہچان ہے۔ یہ گاؤں مشائخ آل و مہار کی وجہ سے ایک تاریخی اور مذہبی شہرت رکھتا ہے۔ ان مشائخ میں سید محمد جیون شاہ، سید محمد چنن شاہ نوری، سید محمد امین شاہ، سید محمد حسین شاہ، سید خالد حسن شاہ اور سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات جنوب مغربی کونے میں واقع ہیں۔ سید جیون شاہ رحمۃ اللہ علیہ آل و مہار کے سادات کے پہلے مشائخ میں سے ہیں۔ آپ امام علی نقی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا خاندان خراسان میں حکومت کے اعلیٰ مناصب پر فائز تھا۔ انہوں نے اعلیٰ عہدوں کو چھوڑ کر فقر و درویشی کے راستے کو اختیار کیا۔ خراسان سے ہجرت کر کے پہلے بھکر اور اس کے بعد آل و مہار میں قیام کیا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام نامی پیر سید امیر شاہ نقوی البھاکری الشجاعی تھا۔ ایک روایت کے مطابق سید محمد جیون شاہ امام علی الحق سیالکوٹی کے زمانے میں ان کے ساتھ بسلسلہ تبلیغ و جہاد اس جگہ پر تشریف لائے اور اس علاقے میں علم و عرفان کی شمع روشن کی۔ ناظرین، اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مزار کے متولی جناب سرفراز بٹ صاحب کے پاس، جو ہمیں اس مزار کے اندر مدفون ان عظیم اولیاء اللہ کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات بتائیں گے۔ ابھی تک جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کا ایک لائک یا کمنٹ میری حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو پیچھے مزار شریف ہے جی، اس کے بارے میں آپ ہمیں تفصیلات بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے آل و مہار شریف کے سب سے بڑے سادات کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بزرگ ہیں۔ ان کا نام حضرت بابا جی جیون شاہ لجپال ہے اور یہ خراسان سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ اصلی اور نسلی سید ہیں، حسنی سید ہیں اور باکری خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کی کرامات، آپ کی دعا سے اس علاقے کے کئی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اکثر جگہ پہ لوگ جب جن نکالتے ہیں، مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، کٹائی کرتے ہیں، لیکن یہ آستانے کا یہ شرف، یہ مقام ہے کہ اگر کوئی تکلیف زدہ، کوئی کسی مصائب میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس آستانے پہ تشریف لائے اور اس آستانے کے گرد چکر لگائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اسیب اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور اس کو اس آستانے سے شفا ملے گی۔ شفا من جانب اللہ، اللہ اپنے بندوں پہ راضی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خدائے پروردگار نے اعلان کر دیا ہے، جو اس کا ہو گیا وہ اس کا ہو گیا۔ جو یہاں آتا ہے اپنی من کے مرادیں لے کے جاتا ہے۔ اس آستانے پہ نہ تو کوئی ایسا غیر شرعی فعل ہوتا ہے، نہ ایسا غیر شرعی کوئی مقام ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں اور احسن طریقے سے سلام پیش کرے، درود پیش کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ انہی کی آل اولاد آگے دوسرے مزار ہیں، میں ادھر آپ کو لے کے چلوں گا، پھر ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی آئیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے خاندان کے اس آل و مہار شریف کے سب سے بڑے بزرگ ہیں اور ان کی وجہ، ان کی توجہ سے یہ فیض
दुनिया पे आम है। वो शेर सवार पालकी वाली सरकार थे, वो शेर पे सवार हुआ करते थे, हाथ में सांप का चाबक रखा करते थे, और उन्हीं के फ्यूज़ो बरक़ात से ये उनके पोते हैं हज़रत ख्वाजा पीर सैयद चन्नन शाह नूरी दाइम हजूरी शमसुल हिंद। ये नक्शबंदी सिलसिला के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। चूरा शरीफ और नथियाल शरीफ से आपको फैज़ है, और ये फैज़ पूरी दुनिया पे आपने लुटाया है, क्योंकि शमसुल हिंद उस वक़्त ये बर-ए-आज़म का जो हिंद सिंध का इलाका पाकिस्तान नहीं था बल्कि हिंद था, उस वक़्त का इसका फैज़ पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। ये ख्वाजा चन्नन शाह नूरी दाइम हजूरी हैं, इन्हीं की आल औलाद साथ इनके ख्वाजा बाबा जी जीवन शाह लजपाल हैं, जहाँ से अल्लामा इकबाल को फैज़ हुआ। अल्लामा इकबाल का जो पीर था वो मौलाना रूम है, और मची जिसकी धूम है, लेकिन उसने यहाँ पे हाज़िरी देकर हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन से ऐसा फैज़ पाया, ऐसा फाज़ पाया है कि दुनिया पे उसका नाम है, मर्द कलंदर उसको कहा जा रहा है। हर उलमा के स्टेज पर उसका शेर पढ़ा जा रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है। वो ऐसी हस्ती इसी आलमहार शरीफ से फैज़ याब होकर गई है। इधर इन्हीं का बेटा ख्वाजा मोहम्मद अमीन का बेटा ख्वाजा पीर मोहम्मद हुसैन है, वो सामने कुतबे लगे हुए हैं। इनका वालिद है ख्वाजा मोहम्मद अमीन सरकार का, और उनके ये बेटे हैं ख्वाजा पीर मोहम्मद हुसैन। इनके भी ऐसे ऐसे मामलात हैं, ऐसे ऐसे करामात हैं कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने इन्हीं की तुफ़ैल आलमहार शरीफ को ये फैज़ बख्शा हुआ है कि दुनिया कायनात से, पूरे पाकिस्तान से मरीदैन आते हैं और यहाँ से फैज़ याब हो के जाते हैं। इस आस्थाने का अब जो सजादा नशीन है वो है साहबजादा पीर मुर्तज़ा अमीन है, और उसको हज़रत खतीबुल इस्लाम का आगे मैं आपको मज़ार पे लेके चलता हूँ, उसका हवाला देते हुए मैं बात करूँगा। आप मेरे साथ आओ। ये जो हमारा ये सबसे आला मुकाम पे मैं आपको लेके आया हूँ, ये खतीबुल इस्लाम है, अबू अल कलाम है, लाखों करोड़ों मरतबा इनके मज़ार पे दरूद व सलाम है। ये पीर फैज़ल सिंस का नाम है, तहरीक ख़त्म नबूवत का मुजाहिद अव्वल है। इसने इससे ऐसे काम किए हैं कि ऐसे ऐसे काम किए कि आज का शायद कोई आदमी ऐसा काम ना कर सके। दीन की खातर आपने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और दीन के लिए बहुत काम किया है। इन्हीं की आल औलाद आगे है, इनका नाम है पीर सईद खालिद हसन। ये भी इन्हीं के पैरोकार हैं, इन्हीं के तरीके पे चलते हुए इन्होंने भी फैज़ सरेआम किया हुआ है। और वो सामने जो मज़ार है वो साहबजादा पीर सईद इफ्तिखारुल हसन का है। वो MNA भी हैं, और MNA के साथ साथ नक्शबंदी मुजद्दिया के बुजुर्गान भी हैं। उन्होंने इस आस्थाने की निकाश को, इस आस्थाने की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा किया है, और इसके दर्जात को, इसके मामलात को खुद अहसन तरीके से हैंडल किया है। और इस आस्थाने का फैज़ ये जो पीर सईद खालिद हसन सरकार के साहबजादे हैं पीर सईद मुर्तज़ा अमीन, अब वो हैंडल कर रहे हैं, और इस आस्थाने का फैज़ पूरी दुनिया पे निछावर कर रहे हैं। आपने चैनल पे, टीवी पे, अक्सर जगह पे उनके नेट पे, वो इंटरनेट पे बयानात आते हैं, और उसकी तकरीबात में, दीगर मामलात में आप सुनते होंगे साहबजादा पीर मुर्तज़ा अमीन कुरान वाले। उन्होंने हमेशा कुरान और हदीस की रोशनी में बात की है, ना फ़िरकाबंदी की बात की है, ना किसी दूरी की बात की है। हाँ, अगर बात की है तो हजूर की हजूरी की बात की है। मुस्तफ़ा की सुन्नत पे काम करते हुए, मुस्तफ़ा के तरीक़ों पे बात करते हुए हमारे दिलों को वो मनवर कर रहे हैं, और अपने फ्यूज़ान बरक़ात से हमको फैज़ जो है अता कर रहे हैं। ये आस्थाना आलमहार शरीफ का जो फैज़ है, आप जिस जगह पे भी जाएंगे आपको इस आस्थाने के मरीदैन मिलेंगे, खुलफा मिलेंगे, और सालहीन लोग मिलेंगे, नेक लोग मिलेंगे, शरीयत पे काम करने वाले लोग मिलेंगे, ना कि झगड़ा फसाद करने वाले लोग मिलेंगे। हम अमन पसंद लोग हैं। वली का दर्स जो होता है वो अमन का दर्स है। हम अमन पे चलने वाले लोग हैं, ना कि हम हड़तालें करने वाले लोग हैं, ना अपने आदमियों को लेकर किसी की मार कुटाई करने वाले लोग हैं। हम अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं। अल्लाह वालों के साथ हमारा तल्लक है, और अल्लाह वाले जो हैं इस गाँव का फैज़ बांट रहे हैं। इन्हीं के जो फ्यूज़ो बरक़ात हैं, हमारे इसी गांव के परले मज़ार पे जो मज़ार है वो इनके खलीफा साहब का है। आपने अपने गांव को भी सवारा है, पूरी दुनिया के पूरी शहरों को भी सवारा है। जहां जहां तक खुदाई परवरदिगार ने इनके फैज़ को पहुंचाया है, आप वहां खुद जाकर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नेक और अच्छे और सालहीन लोग होंगे, और किसी के साथ बददियानती, किसी के साथ जुल्म करने वाले लोग नहीं होंगे। हमेशा ईमान की सलामती वाले लोग होंगे, और ईमान की सलामती की दुआ करने वाले लोग होंगे। हम इसी आस्थाने के सजादा नशीन साहबजादा पीर मुर्तज़ा अमीन की मिसाल बाशुक्र बसद उस खुदाई परवरदिगार का शुक्र अदा करते हुए इस बात का फख्र कर सकते हैं कि हमारे आस्थाने का जो सजादा नशीन है
बिल्कुल हमको उसकी सदाकत पे यकीन है। ऐसा मर्द कामल, ऐसा मर्द कलंदर, ऐसा मर्द फैज़ व बरकत वाला शायद ही आपको कहीं और जगह पर मिले। हर कोई अपनी दुकान की तारीफ करता है, हर कोई अपने मामलात की तारीफ करता है, हर कोई अपना सौदा अपनी तारीफ करके बेचता है, लेकिन तारीफ वो जो खुदा करे, जो मुस्तफ़ा करे, जो मुस्तफ़ा का यार करे, जो अहले यार हैं, जो अहले प्यार हैं, वही हमारे सबके अखलाक के और बात के इजहार के आपके साथ करने की जो ये जिसारत की है, ये उन्हीं के फैज़ व बरकत हैं, उन्हीं के मामला से हम बात कर रहे हैं। वरना हम इस काबिल नहीं कि आपका नाम भी ले सकें, क्योंकि हमारी ज़बानें उस काबिल नहीं। लेकिन खुदाए परवरदिगार अपने प्यारे बंदों का सदका हमको बोलने की तौफीक अता फरमाई, होना से बात फरमाई। जज़ाकल्लाह का मुजज़ा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। जुमा की नमाज मैंने मज़ार की इसी मस्जिद में अदा की, जिसके बारे में सरफराज भट्ट साहब का कहना है कि किसी ज़माने में पीर मेहर अली शाह, पीर सैयद जमात अली शाह सानी, ख्वाजा चनन शाह नूरी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में यहाँ पर नमाज अदा किया करते थे। दरूद व सलाम की खूबसूरत सदाएं रिकॉर्ड करने के बाद मैं मज़ार के साथ मुत्तसिल सदात के कब्रिस्तान की तरफ चल दिया, मगर रास्ते में मेरी नज़र मज़ार के इस बरामदे पर पड़ी, जहाँ पर तरतीब के साथ कई कब्रें मौजूद हैं। ये इतनी ज़्यादा कब्रें किन किन की हैं, ये मैंने जानने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता मेरा कयास है कि ये कब्रें यकीनन इन्हीं औलिया अल्लाह के घराने के अफराद की होंगी जो यहाँ आराम फरमा है। यही सादात का वो कब्रिस्तान है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कब्रों की तादाद से पता चल रहा है कि काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और आपकी आले पाक के सदक़े इस कब्रिस्तान में ही क्या पूरी दुनिया में मदफून तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आलो महार में एक मरकज़ी इमाम बारगाह और जामिया मस्जिद भी मौजूद है। मस्जिद का नाम जामिया मस्जिद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है। दरवाजे पर जली हरूफ में लिखा हुआ है बाबे सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के नाम पर इस मस्जिद और इमाम बारगाह का नाम तजवीज़ किया गया। आलो महार में शियान हैदर कर्रार की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। बाहमी भाईचारे की बेनज़ीर फ़िज़ा के बाइस यहाँ एक दूसरे के अकायद का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। आलो महार में मौजूद इस चर्च की ऊंचाई पर नस्ब सलीब बता रही है कि यहाँ पर अक़लियतों को भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मुझे बताया गया कि इस चर्च के अलावा एक और चर्च भी मौजूद है जिसे मैं वक्त की कमी के बाइस ढूंढ नहीं पाया। गांव से बाहर एक डेरे पर मौजूद आखिरी बची समाधि मुझे नजर आ गई। गुमान किया जा सकता है कि किसी ज़माने में यहाँ कई समाधियाँ मौजूद होंगी। जैसे हमसाया गांव जाम की चीमा के कब्रिस्तान में कई मिस्मार समाधियाँ आज भी अपनी दास्तान बयान कर रही हैं। ठीक उसी तरह सिखों के दौर की ये समाधि भी अपने अंदर एक तारीख समोए हुए आखिरी हिचकियाँ ले रही है। आज इसको मैं अपनी वीडियो में महफूज कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले चंद महीनों या चंद सालों के बाद इसका नामो निशान मिट जाए, जैसे हमारे बहुत से तारीखी विरसे हवादिसे ज़माना की नज़र हो गए। मुझे इस वक्त पसरूर के गांव कलासवाला की मिटती हुई समाधियां याद आ रही हैं। इस समाधि से थोड़ा आगे मुझे एक मज़ार नज़र आया जिसके अंदर 9 गज़ लंबी कब्र मौजूद है, जिन्हें उर्फ़े आम में 9 गज़े कहा जाता है। ऐसी लंबी कब्रें आपको पंजाब के अक्सर देहात में मिल जाएंगी।
थोड़े बहुत अल्फाज के रद्द-व-बदल के साथ सबके पीछे तकरीबन एक ही कहानी गर्दिश करती हुई नजर आती है। एक रिवायत ये है कि ये 9 गज़े औलिया अल्लाह थे और अरब की सरजमीन से आए थे। कुफार से जंग के दौरान इनके जब सर कट गए तो धड़ लड़ते रहे और फिर इसी इलाके में दफन हो गए। अवामुन नास में इसी तरह की मिलती जुलती कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। इन बुजुर्गों की असली कहानी जानने के लिए मैं आपको एक मर्तबा फिर लेकर चलता हूँ सरफराज भट्ट साहब के पास। तो आइए चलते हैं भट्ट साहब के पास। अच्छा किबला, ये फरमाइएगा जो दरबार शरीफ बाहर है एक 9 गज़ा, जी जी 9 गज़ा कब्र देख कर आए हम, उसके बारे में कुछ तफसीलात बता सकते हैं आप? जी जी, वो हमारे इसी गांव की हस्ती हैं और उनका नाम है बाबा जी शहाब गाज़ी सरकार। वो बहुत ही प्यार वाले और बहुत ही मोहब्बत चाहत वाले हैं। मैं पहले वहाँ पे भी मैंने कुछ खिदमत की है, मजावर था, मैं झाड़ू कश था। उन्हीं के फ्यूज़ व बरक़ात से मेरी इस जगह पे ड्यूटी लगी है कि मैं इतने बड़े सदात के आस्थाने पे ख़ादम हूँ। वो शेर अपना जब वो आए थे इमाम अलीउल हक़ के पुकार पर, और उन्होंने सियालकोट वाले इमाम जी साहब, सियालकोट वाले इमाम अलीउल हक़ के साथ वो आए थे। वो इसके पुराने बुज़ुर्ग हैं। आलो महार शरीफ का नाम पहले शाहपुर कोगा था, अभी आलो महार शरीफ के आ जा रहा है। पाकिस्तान बनने से पहले की ये बात है जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे। और वो भी इसी तरह कुफर के साथ लड़ाइयाँ लड़ते हुए यहाँ पर पहुँचे, और जहाँ पे जिसकी उनकी जो जगह थी, जो मज़ार था, वो उसको खुदाई परवरदिगार ने आलो महार शरीफ की धरती में जो है उसका नसीब किया। और इस आलो महार की फजीलत जो है कि आस पास आप जिधर भी जाएंगे, इधर भी हमारे औलिया का मज़ार है, उधर भी हमारे औलिया का मज़ार, दाएँ बाएँ मशरक़ मगरब चारों तरफ से हमको औलिया कराम ने घेरा हुआ है, नेक और सालहीन लोगों ने घेरा हुआ है। आलो महार शरीफ को ये बहुत मकाम, ये शर्फ हासिल है। खुदाई परवरदिगार ऐसा मकाम तमाम पाकिस्तान के शहरों को और तमाम पाकिस्तान के गाँव को, गली मोहल्लों को भी बख्शे, क्योंकि फ़िज़ व बरक़ात जो लेते हैं वो अपनी नीयत के लेते हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पे है। आप चाहें तो अच्छी नीयत का ले सकते हैं फैज़, आप चाहें तो बुरी नीयत का ले सकते हैं फैज़। नीयत आपकी है, लेकिन जहाँ जहाँ पे औलिया हैं वहाँ पर भी खुदा की रहमत जो है वो बरस रही है। मज़ार शरीफ के बिल्कुल साथ मुझे एक वसी और अरीज़ तहखाना नज़र आया। मैंने अपने तौर पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि शायद ज़ायरीन के क़याम ताम यानी लंगर वगैरह के लिए ये तहखाने तामीर किए गए हैं। मगर जब मैंने भट्ट साहिब से बात की तो उन्होंने एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया। आप खुद सुनिए वो सरप्राइज़ क्या है। ये हमारे दरबार शरीफ के साथ जो है ना, ये मदरसा है। ये लंगर खाना भी इंशाअल्लाह लंगर भी चलेगा, लेकिन ये मदरसा है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। ये आलो महार शरीफ का दरबार शरीफ के साथ ये दारुल अमीनिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया ये मदरसे का नाम है। और इसके सरप्रस्त भी साहबजादा पीर सैयद मुर्तज़ा अमीन हैं। और उन्होंने इसकी इतनी मेहनत और काविश करके इसकी जो बिल्डिंग है ना, ये तैयार किया। ये नीचे बेसमेंट है इसका, ये तह खाना है। इसके ऊपर 3 बिल्डिंगें हैं, 3 मंजिला इमारत इसके ऊपर बनेगी, 3 मंजिला इमारत। और ये CCTV कैमरे और इतनी महफूज दरसगाह होगी दीनी और मजहबी कि आप इलाके में देखेंगे कि ऐसी इंशाअल्लाह दरसगाह कहीं और पे नहीं होगी। ये शर्फ आलो महार शरीफ को ही हासिल होगा। और इसके सरपरस्त भी साहबजादा पीर सैयद मुर्तज़ा अमीन है। माशाअल्लाह। नाजरीन, अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक आ गए हैं तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शायद आप नहीं जानते कि ऐसी वीडियोस बनाने में कितनी मेहनत और वक्त लगता है। आपका एक लाइक मेरी मेहनत का फल है। सलामत रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।